Hello, everybody. Hopefully, everyone is fine and taking care of their loved ones and taking all the precautions that are necessary to overcome this pandemic. So, before getting into the chapter, I want to introduce you to a phrase that you all are aware of, and that phrase says, I am a proud Indian. Isn't everyone proud of being an Indian? Yes, everyone is proud to be an Indian. So the chapter says nationalism in India. अब आप लोग कहोगे मैम नेशन तो सुना था, व्हाट इज दिस नेशनलिज्म? नेशनलिज्म को हम हिंदी में बेटा कहते हैं देशभक्ति. अब देशभक्ति से थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है. Okay, so nationalism is a feeling or an emotion that an individual feels about his or her country and is proud to be in that country and born in it. I am a proud Indian and my country is best among all. So this is what nationalism means. सो अब ये नेशनलिज्म झटके में तो आया ही नहीं होगा. देयर मस्ट बी सम सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट ग्लोरी to bring this nationalism into existence. So you all know Britishers ruled us for a huge span of time, and the main leader to come forward was, think, yes, he was Mahatma Gandhi, who came forward with series of events to bring nationalism in India and to integrate and unite all the Indians. And his main motto was non-violence. He told each and everybody to not be violent in order to gain the success. So moving forward, we will solve some of the NCERT questions and you will come across how to solve those questions and actually what the question is asking about. So today we will be taking some of the NCERT questions of Nationalism in India chapter, that is your third chapter of history. So moving on, the first question says explain, and you have to write in brief, that is in short. The A part here says why the growth of nationalism in colonies is linked to anti-colonial movement. ऐसा क्या हुआ कि नेशनलिज्म के ग्रोथ से कि उससे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया. अब पहली बात तो यू नीड टू नो व्हाट आर दीज कॉलोनीज. वेन एवर अ कंट्री इज रूल्ड बाय एन एनी अदर कंट्री and is oppressed by that country, then that country is considered to be a colony. Like India was the colony of Britishers, of Britain people. And where is Britain? Britain is in United Kingdom. So ऐसा क्या हुआ इसके फॉलोइंग रीजन से. द फर्स्ट रीजन वॉज people were feeling oppressed under colonism. They were forced, they were bounded to perform certain tasks. That was the reason they united and finally decided to not live in these colonies anymore. People united in the process of struggle under colonialism. Obviously अब उनको एक तरफ एक उस कॉलोनी में नहीं रहना, तो वो और लोगों के साथ यूनाइट करेंगे तभी तो वो प्रोटेस्ट या रैली वैली कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा होगा कि if you don't like a person and some other person also doesn't like that person, then you people automatically become friends. तो ऐसा ही यहीं पे हुआ. यहाँ पे लोग ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं कर रहे थे और वो यूनाइट कर गए. Each group of individuals experience differently. Obviously सबका experience अपना अपना अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहाँ पे होती तो आई सपोज आई वॉज अ किड, देन मेरे को एजुकेशन ना मिल रही होती. सो ऑब्वियसली आई वुडेंट हैव लाइक ब्रिटिशर्स. ऐसे क्या हुआ, पीजेंट्स को ज़बरदस्ती क्रॉप्स ग्रो करने पड़ रहे थे. दैट वॉज द रीज़न दे वॉन्टेड to end this colonial system. Before getting united, there were some conflicts that took place. कई बार आपका नहीं ऐसे नहीं होता कि you become friends with a person जिनसे आपकी पहले बहुत लड़ाई होती है. So this is how the things took place back then. People first had some conflicts and they then later united. The B part says how the First World War helped in the growth of national movement in India. अब ये क्वेश्चन पढ़ के मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इंडिया ने लड़ी ही नहीं थी. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से 1918 तक. यस, इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ी थी. दे डिडंट फॉट, but the Britishers took part in the First World War, and Britishers were ruling whom?
इंडियंस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दे वर इम्पोजिंग मैनी ऑफ द थिंग्स ऑन इंडियंस, जिसकी वजह से इंडियंस ने इतनी चीज़ें सफ़र कर ली दैट दे वांटेड टू फ्री देम सेल्स फ्रॉम दोज ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले वी विल यू पीपल आर एबल टू सी अ चेन, तो हम इसी चेन प्रोसेस में पढ़ेंगे। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, सो देयर वॉज अ हाइक इन टैक्सेस। क्या हुआ, उन लोग ने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर अपना बहुत इंक्रीज़ कर दिया। वो कहने लगे कि हम डिफेंस पे बहुत एक्सपेंड करेंगे और अपनी डिफेंस आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। कस्टम ड्यूटीज़ वर इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ उन ड्यूटीज़ पे होती हैं, वो टैक्स होता है जो हमारी कंट्री में इम्पोर्ट होती हैं चीज़ें ना, उन पे जो टैक्स लगता है दैट आर नोन एज कस्टम ड्यूटीज़। तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगी। इनकम टैक्स बहुत इंक्रीज़ हो गया। इनकम टैक्स इंक्रीज़ क्या, इंट्रोड्यूस हो गया। पहले इनकम टैक्स होता ही नहीं था, बट इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। और ये सब क्यों वो कर रहा था, ताकि वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च कर सके। फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस। अब क्या हुआ, विलेजेस में लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा कि नहीं, तुम्हें तो आर्मी में जाना ही पड़ेगा। लड़ तो वो बाकी कंट्रीज से रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट उनको आर्मी कहाँ की चाहिए थी, इंडियन पीपल की। सफ़र कौन करे, इंडियन पीपल। सो दिस वॉज द रीज़न। अब क्या हुआ, जब फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा तो दैट वॉज द रीज़न पीपल केम आउट ऑफ विलेजेस एंड दे वर फोर्स टू एम्प्लॉय इन आर्मी प्रैक्टिसेस एंड ऑल। सो बिकॉज ऑफ दैट क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर की वजह से क्या हुआ, प्लेग व्लेग बहुत फैल गया, एपिडेमिक आ गया, फेमाइंस आ गए, पूरा ड्रॉट पड़ गया। एंड दैट लीड टू 12 to 13 million, sorry here it is not mentioned, 12 to 13 million people died because of the famines and epidemic. It was a huge crisis. जैसे अभी आप पैंडमिक देख रहे हो ना, वैसे ही उस टाइम पे एपिडेमिक आया था, and that led to too much of death, that is 120 to 130 lakh people in India. Hopefully this point is clear. Now the C point says why Indians were outraged by the Rowlatt Act. अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, नाम तो बड़ा फैंसी सा है रॉलेट एक्ट, बट ये था क्या। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस वॉज पास्ड बाय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में नहीं थी, दैट वॉज आउट देयर इन ब्रिटेन। वहाँ से दे वर टेकिंग द डिसीजंस फॉर अस एंड इट वॉज पास्ड इन 1919 एंड इंडियंस वर अपोज्ड। यहाँ पे इंडियंस को अपोज, सॉरी, यहाँ पे इंडियंस ने इस एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अपोज किया। दे सेड नो, वी डोंट वांट दिस एक्ट। द रीज़न वॉज है द पॉलिटिकल पार्टीज वर सप्रेस्ड। इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे देश में 1915 में महात्मा गांधी आ चुके थे, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट की वजह से दे वर लाइक व्हाट इज़ दिस हैपनिंग इन इंडिया एंड वी नीड टू कंट्रोल दिस। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दे केम फॉरवर्ड विद द रॉलेट एक्ट एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें क्या है, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, उस बंदे को उठाया, जेल में डाला और वो 2 साल तक, सच अ ह्यूज पीरियड, 2 साल तक वो उसको जेल में रख सकते हैं विदाउट ट्रायल। उसको जज के सामने भी नहीं ले जाएंगे, 2 साल तक वो मज़े में उनको अपने पास रखेंगे। Now the D part here says why Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement. What was non-cooperation movement? जहाँ पे he asked everyone to not cooperate with Britishers and to abandon their goods, to ban their goods, like उनके कपड़े नहीं पहनने, उनकी चीज़ें नहीं यूज़ करनी and all. अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटाने की सोची, ऐसा क्या हुआ था। ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 बिकॉज बहुत जगह पे वायलेंस होने लगी थी एंड ही वांटेड नॉन वायलेंस एज ही वाज अ सत्याग्रही। ही वांटेड कि कोई भी वायलेंस नहीं हो। और ही सेड कि सत्याग्रही जितने भी हैं उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा दैट नो वायलेंस शुड टेक प्लेस। Now the second question says what is meant by the idea of सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। It accentuates upon power of truth, that is it emphasizes the satyagraha concept, notion, emphasis on power of truth
एंड सर्च ऑफ ट्रुथ, हम कैसे पावर को मेंटेन करेंगे और उसको ढूंढेंगे. फिजिकल फोर्स कांट फाइट विद ऑटोक्रेट्स, कोई भी फिजिकल फोर्स, नॉन वायलेंस, हमारे ऑटोक्रेट्स हैं, ये जो ऑपरेसर्स हैं, इनसे हम लड़ नहीं सकते नॉन वायलेंस के थ्रू. वी नीड नॉन वायलेंस फॉर अस एंड नॉन वायलेंस विल डेफिनेटली यूनाइट अस ऑल. द थर्ड क्वेश्चन है इज राइट अ रिपोर्ट ऑन, सबसे पहले है द जलियांवाला बाग मैस्केर. अब जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ कहाँ पे था? अमृतसर इन पंजाब ऑन 13th April. So people came to celebrate Baisakhi and some came to protest against this Rowlatt Act and all. So क्या हुआ वहाँ पे? People जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए to celebrate बैसाखी. और यहाँ पे जर्नल डायर ने क्या किया, धीरे से ना मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. व्हाट वाज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ में क्या होता है कि द होल्ड इज नॉट इन द हैंड ऑफ पुलिस, नाउ आर्मी विल लुक इनटू एवरीथिंग. तो उसने क्या किया, जैसे ही लोग अंदर इकट्ठा हो गए, ही क्लोज ऑल दी एंट्रेंसेस, सारी एंट्रेंसेस उसने बंद कर दी. और क्या किया, आपके पास 5 मिनट है, आप कूद जाओ फटाफट, यहाँ से जा पाओ तो जा लो. और जैसे ही लोग चढ़ने लगे दीवार, व्हाट ही स्टार्टेड, उसने सडनली शूटिंग स्टार्ट कर दी एकदम से. एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डाइड, हंड्रेड्स इन 200 पीपल डाइड. और बाद में ही टोल्ड हिज मेन मोटो वॉज टू क्रिएट अ टेरर अमंग द लार्जर पॉपुलेशन. मासेस में वो एकदम भय बना दे कि अगर हमारे खिलाफ गए तो यू विल फेस दिस और एनी अदर थिंग. देन द साइमन कमीशन पे रिपोर्ट लिखनी है. अब साइमन कमीशन इंडिया में अपॉइंट कब हुआ था? 1928 में. इसमें 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया. इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में देखेंगे और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो लाएंगे. इंडियन नेशनलिस्ट अपोज्ड. वेट, बट वाई? यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे वर्क अपॉन हो रहा है, अच्छी चीज़ें इम्पोज कर सकते थे, बट ऐसा हुआ क्यों? वाई इंडियन पीपल अपोज्ड? The reason was there was no Indian in the commission. There was no Indian member. तो कुछ भी चाहे इम्पोज कर दें तो इंडियन से उनको कोई मतलब ही नहीं. सो इस चीज़ को कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों पार्टीज़ ने मिलकर अपोज किया. एंड व्हेन दिस साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, पीपल pleased them as go back Simon. They asked, go back Simon. So coming to the fourth question, it says compare the images of Bharat Mata in this chapter with the image of Germania in chapter 1. So on the left hand you can see the image of Bharat Mata and on the right hand side you can see the image of Germania. So visualize it and you will see the difference. So the difference in the first Bharat Mata is that it is a symbol of India, whereas the second picture is the image that is the symbol of Germany. The Bharat Mata image was painted by Abhindranath Tagore, whereas the Germania picture was painted by Philip With. It was painted in 1948, whereas the Bharat Mata was painted in 1905. Bharat Mata is having Trishul in her hand and standing beside the lion and elephant. That is the symbol of power and authority. Whereas in the second picture, Germania is holding sword in her one hand and flag in the other and wearing the crown of oak leaves that symbolizes heroism. Fine. So that's all for today. Thank you. Hopefully this video will be helpful for you to solve your exercises. Stay home, stay safe and be happy.